So in previous lectures, regarding construction management and law, we have seen how to draw a network diagrams. ठीक है ना? So depending upon that various activities and durations, we have to draw a network diagram. ठीक है? But in today's lectures, we will draw a network diagram, and beyond this, we will also try to calculate all these four times. ठीक है ना? ये जो times आपके डिस्प्ले में दिख रहे होंगे. So in today's lectures, we will draw a network diagram, and beyond this, we will try to find out the earliest start time, earliest finish time, latest finish time, and latest start time. Okay. So these four time calculations will be also calculated in today's problem. Okay. So actual problems depending upon how much durations it has been required in completion of a project. ठीक है ना? कितने days में project तो complete होगा, ये actual days का calculations we will try to complete in today's lectures. ठीक है ना? We will try to find out these time calculations in today's lecture. ठीक है? Wait a minute. Okay. So in this way, we will in today's lectures we will find out the time required for completion of project. So there are four times already. This slide we have covered in previous lectures. If you have gone through the previous lectures, so just I am repeating for this because we have to calculate in today's lectures all this four time calculations. So in fast way, we will repeat this time calculations. The number one is earliest start time. What is earliest start time? Yes, what is earliest start time? Earliest start time is nothing but the earliest time at which the activity can start, given that all its precedent activities must be completed first. मतलब जल्द से जल्द जो start होगा, the activity which has been started at as early as possible. ठीक है ना? So the earliest time at which the activity can start, given that all its प्रेसिडेंट एक्टिविटीज मस्ट बी कंप्लीटेड फर्स्ट. तो ऐसे एक्टिविटीज जो जल्द से जल्द स्टार्ट हो रहा है, एज अर्ली एज पॉसिबल स्टार्ट हो रहा है, और प्रीवियस एक्टिविटीज उसके कंप्लीट हो रहे हैं, ओनली देन द नेक्स्ट एक्टिविटी इट हैज बीन स्टार्टेड. तो दिस इज नथिंग बट द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम. ठीक है. व्हाट इज अर्लीस्ट फिनिश टाइम? क्या रहेगा फिर? अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या रहेगा? तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम इज द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फॉर द एक्टिविटी प्लस द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एक्टिविटी. मतलब ऑलरेडी जो ईएसटी आपने कैलकुलेट किए थे, ईएसटी में सिर्फ ड्यूरेशन ऐड होगा, जो ड्यूरेशन आपके पास था, तो दैट ड्यूरेशन विल बी एडेड इन ईएसटी. ठीक है ना? ईएसटी में ड्यूरेशन ऐड करके क्या बनेगा? ईएफटी. द टाइम रिक्वायर्ड विल बी ईएफटी. क्या बनेगा? ईएफटी रहेगा. ठीक है ना? तो earliest finish time क्या रहेगा? Earliest finish time is the earliest start time for the activity plus the time required to complete the activity. Formula क्या रहेगा? तो EST plus T. T is the duration. अब next LFT, latest finish time. क्या रहता है latest finish time? तो latest finish time is nothing but the latest time at which the activity can be completed without delaying beyond its targeted completion time the project. ठीक है ना? तो without delaying, when the particular activity it has been completed without delaying is nothing but the latest finish time. ठीक है ना? latest finish time क्या है? The latest finish time at which the activity can be completed without delaying the project. नेक्स्ट लास्ट वाला है LST, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम. क्या रहेगा? द लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट. अब यहाँ पे एडिशन हुआ था क्या फाइंड करने के लिए? ईएफटी के लिए. वैसी एलएसटी फाइंड करने के लिए, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम फाइंड करने के लिए क्या होगा? जो ऑलरेडी एलएफटी फाइंड किए थे अपन ने, उसमें से ड्यूरेशन माइनस होगा. ठीक है. तो क्या मतलब हो गया ये सारे फोर के टाइम्स में? तो फर्स्ट दिस टू जो रेड कलर ग्रीन कलर में मैंने जो मार्क किया है, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट ईएसटी डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशंस, मतलब जो रहेगा, और एलएफटी ये सबसे फर्स्ट स्टेप में वी विल फाइंड आउट. अगर ईएसटी निकलेगा तो ईएसटी के बेस पे ईएफटी निकलेगा. एलएफटी अगर फाइंड होगा तो एलएफटी के बेस पे एलएसटी निकलेगा. ठीक है. तो इज दैट क्लियर? फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम and then we will find out the latest finish time. ठीक है ना? these two time first we will calculate, और depending upon these two time जो green colors में दिख रहे हैं आपको, rest two times will be calculated. ठीक है. So is that clear to everyone? Yes.
Yes, sir. यस प्रियंका, Yes, sir. समझ में आ रहा है? ठीक है ना। सबसे पहले आपको दो टाइम्स निकालना है, EST और LFT, जो ग्रीन कलर में दिख रहे हैं, देखिए अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। अब एक बार अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम निकल गया तो उसी के बेस पे EFT भी निकल जाएगा। वंस वी हैव कैलकुलेटेड LFT, दैट इज द लेटेस्ट फिनिश टाइम, उसी के बेस पे LST भी निकल जाएगा, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। ठीक है, तो दिस 4 टाइम कैलकुलेशंस विल बी कैरिड आउट। अगर आपको याद होगा तो नेक्स्ट स्लाइड में वी हैव सीन द टोटल फ्लोट आल्सो। व्हाट इज टोटल फ्लोट? टोटल फ्लोट भी एक वर्ड आया था। व्हाट इज टोटल फ्लोट? यस, टोटल फ्लोट का आइडिया है किसी को? व्हाट इज द क्रिटिकल पाथ में टोटल फ्लोट आया था? व्हाट वाज दैट टोटल फ्लोट? यस, टोटल फ्लोट क्या था? टोटल फ्लोट कैलकुलेशंस भी था इसमें, ठीक है ना। लास्ट कैलकुलेशंस में वी हैव सीन द टोटल फ्लोट आल्सो। टोटल फ्लोट इज आफ्टर क्रिटिकल पाथ में जो रहेगा, जीरो होने के बाद जो रिमेनिंग रहेगा, दैट इज नथिंग बट द डेज रिक्वायर्ड इज टोटल फ्लोट। ठीक है ना, यहाँ पे देखो, टोटल फ्लोट इज द मैक्सिमम टाइम फॉर विच एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट। ठीक है ना, विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट अपने पास क्या एक्स्ट्रा टाइम है which can be utilized for some other activity, which can be utilized in order to boost some other activity। ठीक है ना, बूस्ट करने के लिए, ना फास्टली रन करने के लिए, we can use that extra days or extra weeks in other activities। ठीक है ना, तो without delaying the project, this statement is very very important, without delaying the project, we are using the days without delaying the project। ठीक है ना, so this is nothing but the total float। So total float is the maximum time for which an activity can be delayed without delaying the project। ठीक है, therefore free float क्या रहेगा? free float is the maximum time for which an activity can be delayed without delaying the project। उसी को उसने other words में बोला है free float। ठीक है, तो this total float to be calculated, कितना days मेरे hand में है, we are having extra that can be utilized for some other that is the precised activity or some other critical activity। एक्स्ट्रा कहाँ पे यूज कर सकते हैं अपन, वी विल सी। तो ये भी आपको निकालना है। वी विल फाइंड आउट दिस 4 टाइम्स, EST, EFT, LFT, LST, एंड ऑल्सो वी विल फाइंड आउट दिस टोटल फ्लोट। ये जो है ना टोटल फ्लोट, वो भी आपके आज के लेक्चर्स में वी विल ट्राई टू फाइंड आउट दिस टोटल फ्लोट। ठीक है, तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस, Yes, sir. समझ में आ रहा है क्या? आसिफ, आसिफ, Yes, sir. अमान, अमान, समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो आज के लेक्चर्स में वी विल एक्चुअली सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम कैसा रहता है और ड्यूरेशंस कैसे निकालते हैं और ऑल दिस कैलकुलेशंस हाउ इट हैज टू बी डन, वी विल सी। ठीक है, तो मैं एक थोड़ा सा मेरा जो है मेरे पास वो स्लाइड शेयर कर रहा हूँ मैं। वी विल एक्चुअली ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम्स। यस, यस, तो हियर yes it is visible। yeah, तो here we will draw a network diagram for this। ठीक है ना, ये क्या करेंगे आज के लेक्चर्स में, we will draw the network diagrams। ठीक है ना, तो network diagram कैसा रहता है, we will try to draw this network diagrams। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर्स में we will have a network diagram on this। first we will read the questions how it has to be calculated। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है रहता है, देखो, ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम। ये तो बेसिक चीज है जो अपने पिछले लेक्चर्स में अपन ने स्टार्ट किए थे, तो वही चीज अपन को करना है। पहले सबसे पहले नेटवर्क डायग्राम निकालना है, ड्रॉ करना है, और उसी के बेस पे क्या निकालना है, ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम एंड फाइंड द EST, EFT, LST, LFT एंड द टोटल फ्लोट। ठीक है ना, so these 5 quantities to be calculated depending upon the network diagrams। ठीक है, so is that clear to everyone? So we have to draw network diagrams, and depending upon this network diagram we have to find out these 5 quantities, that is the earliest start time, earliest finish time number 2, latest start time number 3, and latest finish time number 4, and finally the total float required। ठीक है ना, एक्स्ट्रा टाइम विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट, टोटल फ्लोट भी निकालना है आपको। अब क्या गिवन है अपने पास, देखो यहाँ पे टेबल में, तो सबसे पहला गिवन है एक्टिविटी, नेक्स्ट इज नथिंग बट द ड्यूरेशंस। अब एक्टिविटी पिछले बार में कैसा नोट, इट हैज बीन डिनोटेड बाय ABCD, है ना, आपको याद होगा, तो ABCD से एक्टिविटी डिनोट हो रहा था, बट इन दिस केस
इट हैज बीन डिनोटेड बाय 1 to 2, 1 to 3 एंड 2 to 3 है, एक नंबर से डिनोट हो रहा है। जो अपन जो नोड के अंदर जो नंबर्स देते थे, सर्कल के अंदर जो नंबर्स देते थे, तो वही नंबर से इट हैज बीन डिनोटेड। ठीक है, तो ABCD इंस्टेड ऑफ दैट numbers it has been used for activities। ठीक है, so first we will draw the activities and their durations it has been given. The durations may be in days or maybe in weeks. Weeks भी हो सकता है, days भी हो सकता है। So this 20, 25, 10, 12 and 6 and finally 10, these are the weeks or days required for completion of project। ठीक है ना, तो इसके डिस्क्रिप्शन में ना जाते हुए कि what is the description, जैसा ये डिस्क्राइब होता है वैसा, तो बट वी विल ड्रॉ अ नेटवर्क डायग्राम। ये जो दो कॉलम्स है इसके बेस पे वी विल ड्रॉ अ नेटवर्क डायग्राम। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल start drawing the network diagram। तो first I am drawing this। तो सबसे पहला क्या है, देखो एक्टिविटी 1 to 2, 1 नोड से लेके 2 नोड तक ड्यूरेशंस कितना है, देखो व्हाट इज द ड्यूरेशंस फॉर 1 to 2 नोड। यस, कितना ड्यूरेशन से बताओ? 20। ठीक है ना, तो मैं 1 नोड अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। वी आर ड्रॉन दिस 1 नोड। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा भी नोड ड्रॉ करता हूँ, इसको नाम दे देंगे अपन 2। we will call this as 2। तो 1 2 it is having durations 1 node से लेके 2 तक है। it has been connected by an arrow, so there is an arrow also here। so we will copy this। yes, so 1 to 2 node के लिए duration is 20। so here already I'm having this 20, so we will copy this here as 20। ठीक है, ये क्लियर हो गया। 1 to 2 ड्यूरेशन कितना है, 20 days और 20 weeks। इट मे बी डेज और वीक्स जो भी है, बट 20 है। ठीक है, 1 to 2 20, तो 1 to 2 ड्रॉ कर दिया 20। नेक्स्ट सेम 1 पॉइंट से इट हैज बीन 1 to 3, इट इज हैविंग 25। ठीक है ना, ड्यूरेशन कितना है इसका, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 1 to 3 इज 25। तो अगेन 1 से ही स्टार्ट होगा और 3 पर रहेगा। तो इसी को मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ और इसी के लाइन में नीचे लेते हैं and we will call this as 3 and same will be copied here। okay, so 1 to 3 कितना है, it is having a 25 days। so again this we will copy here and we will keep this name as numbers as 25। sorry, 25। okay, so 1 to 3 is 25, 1 to 2 is 20, 1 to 3 is 25, 2 to 3 is 10 and 2 to 4 is 12। मतलब 2 से 2 लाइंस स्टार्ट हो रहे हैं, एक 2 से 3 की तरफ जा रहा है और 2 से 4 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो वी विल हैव 2 to 3 फर्स्ट। तो 2 to 3 कितना है, तो अगेन दिस विल बी कॉपीड हियर। फिर से एक बार एक ये कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे तो ये रहेगा यहाँ पे। yes, 2 to 3 is 10 days, so this will we will copy here। हेलो सर। यस, हाँ बोलिए। सर वो 2 और 3 से एक पॉइंट से एग्जीक्यूट हो रहा है ना सर, तो उन दोनों के बीच में डमी स्विच आएगा ना सर, 2 और 3 के बीच में, तो वहाँ पे तो टाइम ड्यूरेशन 0 हो जाएगा ना। नहीं नहीं, देखो स्टार्टिंग टाइम क्या है, स्टार्टिंग नोड 2 से 3 तक। ये बहुत सिंपल डायग्राम है ना, ये डायग्राम बहुत ज़्यादा सिंपल है। पिछले जो डायग्राम्स थे अपन ने जो निकाले थे, ये जो एक्टिविटीज ABCD जो यूज़ किए थे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट ये और ज़्यादा सिंपल कर रहा है। ये नोट्स के फॉर्म में दे दिया इसने, नोट्स मतलब नंबर्स के फॉर्म में दे दिया। 1 to 2 देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 2 की तरफ जा रहा है। तो आप जैसा जो रीड कर रहे हैं वैसे ड्रॉ करो, बहुत सिंपल है। इसमें मतलब प्रेडिसीजर बोल के ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रीवियस एक्टिविटी बोल के नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल ड्रॉ करना है आपको। 1 to 2 का 20 है, तो एक नोड से दूसरे नोड को कनेक्ट कर दिया मैंने, 20 ले लिया। ठीक है, अब 1 से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड लाइन में 1 से स्टार्ट हो रहा है और 3 को कनेक्ट कर रहा है। तो 1 से स्टार्ट हुआ, 1 से ही स्टार्ट हुआ, 3 को कनेक्ट किया, कितना ले लिया 25। वैसे 2 से स्टार्ट हुआ और 3 को कनेक्ट किया, तो 2 से स्टार्ट हुआ, 3 को कनेक्ट किया, कितना डेज लिया 10। ठीक है, वैसे 2 से स्टार्ट हुआ और 4 को कनेक्ट किया। अब 4 मेरे पास अभी आया नहीं है ना, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 4 एक्टिविटी। पिछले जो किए थे उससे बहुत ज़्यादा सिंपल है ये।
क्योंकि पिछले एक्टिविटीज में प्रीडिसेसर्स भी था और अल्फाबेटिकल वे भी था, है ना, थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूज था, बट ये और ज्यादा सिंपलेस्ट वे में। तो 2 to 4, ये 2 to 4 और 3 to 4 है। देखो यहाँ पे 2 to 4 है 12। तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ कॉपी करके, विल ट्राई टू दिस। यस, 2 to 4 यहाँ पे करेंगे आप, 2 to 4 as 12। तो इसी को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आज के एक्चुअल प्रॉब्लम में ये नेटवर्क डायग्राम तो ड्रॉ करना भी इंपॉर्टेंट था, बट मेरा जो आज का कंसेप्ट था, तो हाउ टू फाइंड आउट द टाइम रिक्वायर्ड, इसलिए मैंने ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम लिया, जिसमें ये थोड़े से ज़्यादा मतलब नेटवर्क डायग्राम सिंपल बन गया, बट कैलकुलेशंस इज मोर। ये EST LST ये कैलकुलेशंस बताने के लिए अपना वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये नेटवर्क बहुत सिंपल वे में ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। 2 to 4 कितना है? 2 to 4 इज, सॉरी 14 नहीं है, इट इज हैविंग 12। वैसे 3 to 4, 3 to 4 देखो आप, 3 to 4 क्या है? 3 to 4 इज, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, थ्री टू फोर इज 6। So 6, we will have this as 6. Yes, 6. 6, ठीक है। 3 to 4 6 हो गया। अब लास्ट इज 4 to 5, एक ही लाइन में खत्म हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ ये स्ट्रेट लाइन में, और वी विल कॉल दिस एज 5, and an arrow will be required, एक्टिविटीज को ज्वाइन करने के लिए arrow will be required, we will take this as arrow। yes, 4 to 5 is 10 days, so this 10 already we are having this, so we will copy and paste here 10 days। तो एक बहुत ज्यादा सिंपल वे में नेटवर्क डायग्राम इट हैज बीन ड्रॉन, ठीक है। तो ये डाउट क्लियर हुआ, हाउ वी हैव ड्रॉन दिस नेटवर्क डायग्राम? यस, एनी डाउट्स रिलेटेड विद दिस, हाउ वी हैव ड्रॉन दिस नेटवर्क डायग्राम? किसी को डाउट्स था? यस, मुनीब, मुनीब, अभिनव? नहीं सर, क्लियर है। हाँ, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है ना। ये मतलब आपको एज गुड एज वो ड्रॉ करके ही दे रहा है, सिर्फ लाइन लगाना है आपको, लाइन और नोड्स में लिखना है बस, और कुछ नहीं। उसने सिंपलेस्ट वे में आपका पूरा डाटा गिवन है टेबल फॉर्म में, सिर्फ आप कनेक्ट करते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ कनेक्ट कर रहे हैं। 1 to 2 कनेक्ट हो गया, 1 to 3 कनेक्ट हो गया, 2 to 3 कनेक्ट हो गया, 2 to 4 कनेक्ट हो गया, 3 to 4 कनेक्ट हो गया, 4 to 5 कनेक्ट हो गया, है ना। जो आपने ABCD वाला जो कंसर्न किए थे प्रेडिसेसर, वो भी प्रॉब्लम आगे आएगा, मगर आज के प्रॉब्लम में मेरा कंसर्न था, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हाउ टू फाइंड आउट EST's वैल्यूज, है ना, EST EFT ये सारे वैल्यूज कैसे निकालना है, वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। इसलिए मैंने बहुत ज्यादा सिंपल नेटवर्क डायग्राम लिया हूँ, जिसमें इजिएस्ट वे टू ड्रॉ दिस नेटवर्क डायग्राम इज दीज एक्टिविटीज इन द फॉर्म ऑफ दिस नंबर्स। ये भी एक फॉर्म है, ठीक है ना, ये भी एक क्वेश्चन में पूछा जाता है, 1 to 2, 1 to 3, 2 to 3, 2 to 4, ये भी एक फॉर्म में नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना है अपने को, ठीक है। अब मैंने 4 वैल्यूज आपको बताया था, 4 टाइम बताया था, जिसमें से 2 टाइम अभी कैलकुलेट करने थे। कौन से 2 टाइम मैंने बताया था कि वी हैव टू कैलकुलेट एट द फर्स्ट स्टेज? व्हाट आर द टाइम्स रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एट द फर्स्ट स्टेज? कौन से टाइम थे बताओ? अर्लियर स्टार्ट टाइम और एक था EST और LFT। यस, हाँ। अर्लियर स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम, जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाली चीज और जल्द से जल्द खत्म होने वाली चीज, फिनिश होने वाली चीज, ठीक है ना। अगर एज अर्ली एज पॉसिबल स्टार्ट होना है और एज अर्ली एज पॉसिबल फिनिश होना है, तो EST एंड LFT दिस वी विल कैलकुलेट एट द फर्स्ट स्टेज। सबसे पहले स्टेज में आप ये EST और LFT कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने ये नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ किया, तो नेटवर्क के डायग्राम के जो सर्कुलर पार्ट में नोड्स दिख रहे हैं आपको, सर्कल में नोड्स 1 2 3 4 नंबर्स में जो नोड्स दिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द इवेंट बोलते हैं इसको टेक्निकल वर्ड में। ये जो इवेंट्स दिख रहे हैं, नोड्स दिख रहे हैं, है ना, उसी के ऊपर में आप सबसे पहले लिखेंगे, ब्लॉक में मेरे पास है बना हुआ, ये ब्लॉक में आपको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं ये सबसे पहले यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है।
और ये 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। कोई भी चीज स्टार्ट होती है 0 से, इससे पहले में कुछ भी नहीं है, बट मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको व्हाई वी हैव स्टार्टेड विद 0, ठीक है ना। अब ये ब्लॉक जो रहेगा, ये दिस ब्लॉक विल बी पेस्टेड एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट में ये पेस्ट होगा। जितने नोड्स उतने EST और LFT कैलकुलेट हो गए। जितने नोड्स मेरे पास रहेंगे तो दैट नंबर्स ऑफ EST अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम फॉर एवरी नोड विल बी कैलकुलेटेड, ठीक है। तो मैंने हर एक के सामने में इसको पेस्ट कर दिया। आप जब लिखेंगे तो ऐसे पेस्ट करके लिखना है, मतलब बॉक्स में ही लिखना है इसको। तो 1 2 3 में भी आ गया, पेस्ट हो गया, 4 एंड 5, ठीक है। अब वैल्यूज कैसे निकालने हैं, वी विल वन बाय वन स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है। अब ये 0 को अभी निकाल दो, फर्स्ट पॉइंट इज। अब EST, फर्स्ट EST क्या बोल रहा है, अर्लियर स्टार्ट टाइम। स्टार्ट टाइम कैसे स्टार्ट होता है, फर्स्ट नोड से स्टार्ट होता है, पहले से, आगे से है ना, 1 2 3 4 आगे की तरफ जाएगा ये। तो स्टार्ट 1 से होगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो अर्लियर स्टार्ट टाइम, इससे पहले में कुछ है क्या, तो देयर इज नो वैल्यू, तो वी विल स्टार्ट विद 0 वैल्यू, है ना। पहले EST, इससे पहले में कुछ नहीं है तो 0 है, ठीक है ना। EST 0 लिख लिया आपने यहाँ पे, तो 0 हो गया। अब नेक्स्ट नंबर 2 पे जाओ। नंबर 2 EST की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, तो दैट वैल्यू ऑफ नोड 2 विल बी डिपेंडेंट ऑन EST प्लस द ड्यूरेशंस, ठीक है ना। 20 जो ड्यूरेशन है, तो 0 दिस 20 ड्यूरेशंस प्लस द प्रीवियस EST will find out, we will use to find out the next node EST जो नेक्स्ट वाला निकलेगा वो किस पे डिपेंडेंट रहेगा, प्रीवियस पे। तो 20 इसका ड्यूरेशन था, तो 20 प्लस 0 कितना होगा, 20 प्लस 0 इज, यस 20 प्लस 0 इज 20 तो यहाँ पे मैं 20 लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 20 आ गया 20। अब EST में जब कैलकुलेट होता है तो वो नोड भी कितने एरोज आ रहे हैं, अब देखो एरो देखते जाना है आप। फॉरवर्ड में देखेंगे, एक तो फॉरवर्ड पास था और एक तो बैकवर्ड पास था। ये भी दो वर्ड्स अपन ने मतलब प्रीवियस लेक्चर्स में देखे थे अपन ने, है ना। फॉरवर्ड था और बैकवर्ड था। अब EST कैलकुलेट हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शंस में, फॉरवर्ड में हो रहा है, मतलब फॉरवर्ड में एरोज है। तो 2 के तरफ में कितने एरोज आ रहे थे, देखो एक ही एरो आ रहा था, वो कहाँ से आ रहा था, 1 से आ रहा था। तो इसलिए 20 प्लस 0 अपन ने 20 ले लिए। अगर सपोज 2 के तरफ में 2 एरोज आते थे, तो दोनों में से जो मैक्सिमम होता था, दैट मैक्सिमम वैल्यू वी हैव टेकन एज EST वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू वी हैव टेकन एज EST वैल्यू। बट ये जो 2 का जो नोड था, इसमें एरो एक ही मीट हो रहा है, यहाँ पे एक ही आ रहा है, वो 1 से आ रहा है, ठीक है। इसलिए एक ही वैल्यूज आ गई, 20 प्लस 0 एज 20। अब देखो ये चीज मैं जो बोल रहा हूँ, ये सेंटेंस यहाँ पे थर्ड पे क्लियर होगा। देखो 3 पॉइंट, थर्ड पॉइंट आओ, थर्ड पॉइंट पे EST निकालना है आपको। अब थर्ड पॉइंट का EST कैसे निकालेंगे, प्रीवियस ऐड होगा ड्यूरेशन से, प्रीवियस EST ड्यूरेशन से ऐड होगा। बट अब 3 में एरोज कितने आ रहे हैं बताओ, हाउ मेनी एरोज आर देयर फॉर 3 थर्ड नोड, 2 एक एरो 2 से 3 की तरफ आ रहा है, दूसरा एरो 1 से 3 की तरफ आ रहा है। इज दैट क्लियर, है ना। 1 से 3 की तरफ एक एरो आ रहा है और एक 2 से 3 की तरफ एक एरो आ रहा है। तो अब ये दोनों में से विच वैल्यू वी हैव टेकन, वी विल टेक एज द वैल्यू ऑफ EST। कौन सी वैल्यू लेंगे, तो दोनों में से जो मैक्सिमम रहेगा, दैट मैक्सिमम वैल्यू विल बी टेकन एज द वैल्यू ऑफ EST, अर्लियर स्टार्ट टाइम मैक्सिमम रहेगी। अब देखो 2 से देखो, 2 की वैल्यू EST प्रीवियस कितनी थी, 20। 20 प्लस ड्यूरेशन, तो 20 प्लस 10 इज 20 प्लस 10 इज 30। 30 EST की एक वैल्यू 30 आ गई। अभी मत लिखो, नेक्स्ट वैल्यू देखो, थर्ड के 1 की तरफ है, तो 1 की वैल्यू क्या है, EST की वैल्यू 0। 0 प्लस 25 कितना होगा, 25 25 एक तरफ से 30 आ रही है, दूसरी तरफ से 25 आ रही है, तो मैक्सिमम क्या हो गया, 30 30 So we will take while calculating EST the maximum value as 30. तो आप यहाँ पे लेंगे the maximum value as 30. ये कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। EST फॉरवर्ड कैलकुलेशंस हो रहा है एरोज के हिसाब से। तो जो नोड का आप EST निकाल रहे हैं, तो वो नोड पे कितने एरोज आ रहे हैं और कहाँ कहाँ से एरोज आ रहे हैं वो कैलकुलेट करेंगे आप, और उसमें से मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे था 10 ड्यूरेशन प्लस प्रीवियस EST, तो 20 प्लस 10 इज 30,
इसलिए 30 अभी लिखे नहीं थे, बट यहाँ पे दूसरी वैल्यू थी 25. 25 प्लस 0 इज 25, तो मैक्सिमम इज 30, तो वी हैव टेकन एज EST वैल्यू एज 30. यस, सबके लिए क्लियर है ये वैल्यू? यस, संदेश 30 वैल्यू क्यों लिया आपने? 30 EST, वाई वी हैव टेकन एज 30 EST? श्रेयस, सुमेरा, पूजा, why we have taken 30 as EST value? क्या है सब ये? कल्याणी, यस सर, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यूज, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यूज, और जहां पे एरोज मीट हो रहे हैं, जो नोड का आप कैलकुलेशन निकाल रहे हैं उसमें एरोज गिनो, एरोज देखो कितने एरोज कहाँ से आ रहे हैं, जो एरोज जहां से आ रहा है तो वो एरोज आप वहां पे वी विल टेक दिस एज द मैक्सिमम वैल्यूज, ठीक है ना। तो अब दोनों तरफ से जो मैक्सिमम था वो मैक्सिमम वैल्यू लिया आपने, एक तरफ 25 था, दूसरी तरफ 30 था, तो वी हैव टेकन एज 30 एज द मैक्सिमम EST वैल्यू, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? दानिश, दानिश, आसिफ, यस सर, समझ में आ रहा। यस सर, समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है, ये पॉइंट तक आ गए आप, 3 तक आ गए, अब 4 देखो। अब 4 में और एक बार कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है, 4 और एक बार कंफ्यूज कर रहा है। 4 में अगेन देयर आर 2 एरोज मीटिंग एट द नोड 4. 4 में अगेन 2 एरोज मीट हो रहे हैं, एक एरोज 2 की तरफ से आ रहा है और एक एरोज 3 की तरफ से आ रहा है। अगेन यहाँ पे कंफ्यूजन है कि which value we have taken as, we have to take as EST value, again we have to take as maximum value. तो निकालने के लिए प्रीवियस EST प्लस ड्यूरेशन देखो और यहाँ पे लिखो, प्रीवियस EST प्लस ड्यूरेशन लिखो और यहाँ पे लिखो। तो आप दोनों में से बताओ कि मतलब फोर्थ वैल्यू में EST क्या रहेगा, फोर्थ नोड पे EST मैक्सिमम कौन सा रहेगा? 36 36 36 आएंगे सर। 36 रहेगा। एनी आंसर्स बियॉन्ड दिस? इसके अलावा किसी का कोई आंसर है? 36 क्यों लेंगे आप मैक्सिमम, ठीक है। दूसरी वैल्यू कितनी आ रही है बताओ? 32 32 आ रही है, एक 32 आ रही है, एक 36 आ रही है, तो मैक्सिमम EST विल बी 36. इज इट क्लियर? नौमान, इज इट क्लियर? मैक्सिमम ले रहे हैं आप, ठीक है। तो 36 मैं अभी कॉपी करता हूँ मैक्सिमम के लिए 36, तो 30 ऑलरेडी था मेरे पास, इसको थोड़ा सा चेंज करके वी विल टेक दिस एज 36, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम से ये 36 आ गया, 36, ठीक है, तो वी हैव टेकन एज 36. नेक्स्ट 36 निकालने के बाद अब नेक्स्ट वैल्यू निकाल रहे हैं आप फिफ्थ नोड की, आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहा है अपना, ठीक है ना। फॉरवर्ड डायरेक्शंस में आपके कैलकुलेशंस हो रहे हैं, स्टार्ट किए थे 0 से, अब लास्ट वैल्यू आप देखेंगे कितनी आती है, ठीक है। अब देखो फिफ्थ नोड पे एक ही एरो आ रहा है जो 4 की तरफ से आ रहा है, 4 to 5, मतलब ये सिंपल बन गया आपके पास। तो 36 ऑलरेडी मेरे पास था, 36 प्लस 10 विल बी 46। 46 46. So this value will be 46, ठीक है, आ गया 46। तो यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शंस में वी हैव कैलकुलेटेड ऑल द अर्लियर स्टार्ट टाइम, जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाली एक्टिविटीज, उसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, तो जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाले का टोटल ड्यूरेशन रहेगा 46. इट मे बी डेज और इट मे बी वीक्स, 46, ठीक है। तो EST आ गया आपका 46। अब लेटेस्ट फिनिश टाइम आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब लेटेस्ट फिनिश टाइम में उल्टा प्रोसेस स्टार्ट होगा, जैसा EST फॉरवर्ड डायरेक्शंस में था वैसे LFT बैकवर्ड डायरेक्शंस में आएगा। LFT कैसा आएगा? तब के LFT देखो ब्लैंक थे, बॉक्स ब्लैंक के, अब LFT की कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। अब जहां पे एंड हुआ था वही पॉइंट से, फिफ्थ पॉइंट से बैकवर्ड डायरेक्शंस में फिनिश टाइम, फिनिश कब होता है? लास्ट में होता है ना, इसलिए फिनिश रिवर्स में लेके जा रहे हैं आप, ठीक है। रिवर्स डायरेक्शंस में, बैकवर्ड डायरेक्शंस में फिनिश टाइम स्टार्ट होगा। तो जहां से फिनिश टाइम स्टार्ट होंगे वही फिनिश टाइम आप EST एंड LFT विल बी सेम। स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा आपका? सेम रहेगा, क्योंकि अभी अपने पास कोई वैल्यू नहीं है,
तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम विल बी द इक्वल टू द लेटेस्ट फिनिश टाइम। कुछ ना कुछ तो स्टार्ट होगा ना, कुछ ना कुछ वैल्यू से आप स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है assumptions में, द earliest start time is the same as the latest finish time is same as the earliest start time, ठीक है, लास्ट नोड के लिए। अब रिमेनिंग नोड्स के डिपेंडिंग अपॉन दिस LFT लेटेस्ट फिनिश टाइम, अब बाकी के कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब वही चीज जो प्रोसेस मैंने फॉरवर्ड में किया था बैकवर्ड में करेंगे, बट मैं फॉरवर्ड में बताया था कि दो एरोज जहां पे मिल रहे हैं तो जिसमें मैक्सिमम वैल्यू रहेगा वो रहेगा EST। वही स्टेटमेंट में के रिपीट कर रहा हूं मैं कि LFT के लिए अब स्टेटमेंट रिवर्स हो जाएगा इसका। LFT में अगर टेल एंड जहाँ पे मिलता है, एरो ना मिलते हुए रिवर्स वे में जा रहे हैं आप, तो टेल एंड जहाँ पे ज्यादा मिल रहे हैं उसमें से जो मिनिमम वैल्यू रहेगा दैट मिनिमम वैल्यू विल बी LFT। टेल एंड में द मिनिमम वैल्यू विल बी LFT, लेटेस्ट फिनिश टाइम। मिनिमम वाला जो रहेगा वो लेटेस्ट फिनिश टाइम रहेगा, ठीक है। वो और आपको कैलकुलेशंस में और अच्छे से समझ में आएगा कि मिनिमम कैसे ले गया। तो फर्स्ट मैंने 46 यहाँ पे पेस्ट कर दिया सेम वैल्यू में। अब रिवर्स वे में आता हूँ, देखो 5 से 4 में रिवर्स में आ रहा हूँ बैकवर्ड में। 4 को कितना टेल एंड आगे मिल रहा है, एक ही टेल एंड 5 से आ रहा है, तो दैट मीन्स एक ही ड्यूरेशन का आ रहा है, 10 ड्यूरेशन का। तो ऑलरेडी मेरे पास 46 था, तो 46 माइनस 10 कितना होगा, कितना होगा 36. तो सेम आ गया, देखो यहाँ पे 36 आ गया 36। अब 4 से 3 की तरफ भी जाऊंगा, 4 से 2 की तरफ भी जाऊंगा, तो अब अल्फा मतलब नंबर्स वे में जैसा आएंगे वैसे नंबर्स में जाओ। 4 से अब 3 की तरफ रिवर्स वे में 3। अब 3 का जब कैलकुलेशंस कर रहा हूं मैं, तो 3 की तरफ कितने टेल एंड्स आ गए, देखो कितने टेल एंड आया 3 पे, 1. एक ही टेल आया है। वो कहाँ से आया है, 4 से 3 की तरफ एक ही टेल एंड है। टेल एंड जैसा EST में हेड था, एरोस था, वैसे LFT कैलकुलेट करने के लिए टेल एंड है, ठीक है। तो टेल एंड 4 से 3 में कितना आया, एक ही आया। कहाँ से आया, 4 से आया। तो 4 का जो LFT लेंगे वो लेंगे आप LFT 36। 36 माइनस 6 कितना होगा, 30. 30. तो ये 30 भी एज इट इज आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये 30 भी आ गया यहाँ पे एज इट इज, ठीक है। ये क्लियर हो गया LFT, थर्ड नोड का LFT क्लियर हो गया। अब सेकेंड नोड की तरफ जाएंगे आप। अब सेकेंड नोड इंपॉर्टेंट है, जो कंसेप्ट मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब सेकेंड नोड पे देखो कितने टेल एंड्स मीट हो रहे हैं यहाँ पे। हाउ मेनी टेल एंड्स आर मीटिंग एट नोड 2? 2. 2। एक आ रहा है फोर्थ नोड से आ रहा है और एक थर्ड नोड से आ रहा है। तो विच वैल्यू वी विल टेक एज LFT वैल्यू, कौन सी वैल्यू लेंगे आप? सर 3 से मिनिमम वैल्यू, Minimum value. दोनों में से जो मिनिमम रहेगा वो मिनिमम वैल्यू वी विल टेक एज LFT। अब देखो एक 4 से जो आ रहा है वो पहले कैलकुलेट करके देखो। 36 है LFT प्रीवियस, तो 36 माइनस 12 कितना होगा, 24. 24. 24। याद रखो अभी 24 एक वैल्यू था मेरे पास, 24 याद है। अब दूसरी देखो, एक टेल एंड 3 से 2 की तरफ आ रहा, तो 3 का LFT है 30। 30 माइनस 10 कितना होगा, 20. 20। तो 24 और 20 में से मिनिमम कौन सा हो गया, 20. 20. 20। तो वी विल टेक द वैल्यू एज, वी विल टेक द वैल्यू एज 20। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। 20 क्यों लिया आपने, 24 sir. क्यों नहीं लिए, ठीक है। LFT में मिनिमम लीस्ट वैल्यू आप लेंगे, ठीक है। तो टेल एंड जो मीट हो रहा है उसकी जो लीस्ट वैल्यू है, दैट लीस्ट वैल्यू विल बी टेकन इन LFT, लेटेस्ट फिनिश टाइम में लीस्ट वैल्यू आप लिए। तो पहला था 24, दूसरा था 20, तो वी हैव टेकन एज मिनिमम वैल्यू एज 20। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है क्या? यस, Yes, sir. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? प्रियंका, पूजा, मुफद्दल, ठीक है। अब लास्ट वैल्यू मेरे पास बाकी है अभी ड्रॉ करने की। अब देखो फर्स्ट नोड पे कितने टेल एंड्स मीट हो रहे हैं, बताओ कितने टेल एंड्स आ रहे हैं,
दो 2 अगेन वही कंसेप्ट यहाँ पे रिपीट हो गया, ठीक है। दो टेल एंड्स आ रहे हैं, एक 2 से 1 की तरफ आ रहा है और एक 3 से 1 की तरफ आ रहा है। तो इसमें जो मिनिमम रहेगा वो मिनिमम वैल्यू मैं लूंगा। अब देखो 2 से 1 की तरफ जो आ रहा है वो 2 का LFT था 20, 20 माइनस 20 कितना आएगा, कितना शून्य आएगा, 0 0 वैसी LFT देखो 30 माइनस 25 कितना होगा, 5 5। 5 तो मिनिमम इज 0 और 5 0 0 0, ठीक है। तो दिस वैल्यू इज 0, दिस वैल्यू इज 0। इससे एक चीज और इम्पोर्टेंट है, इसमें चेक भी मिलता है, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट इट विल हैव द सेम वैल्यूज। जैसा यहाँ पे स्टार्ट भी जो कैलकुलेशंस के हिसाब से 0 0 आ गया और एंड भी देखो जो वैल्यूज थी 46 46 आ गई। दैट मीन्स ये पूरा नेटवर्क डायग्राम अपना करेक्ट है, ठीक है। तो बाय कैलकुलेशंस द वैल्यू इट हैज बीन कैलकुलेटेड एज 0। आपने अज्यूम 0 नहीं किए थे, बट फर्स्ट EST अज्यूम किए थे स्टार्टिंग 0, बट एंड में वी हैव LFT वी हैव टेकन एज 0 बाय कैलकुलेशंस। LFT 0 कैलकुलेशन से आया है, ठीक है। तो दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स आपके मतलब ये नेटवर्क डायग्राम में क्लियर हुए हैं। ये सबसे पहला है EST टू बी कैलकुलेटेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शंस, सबसे पहली चीज। LFT will be calculated in backward directions, दूसरी चीज। नेक्स्ट EST जब भी कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू एरो एंड्स की लेंगे, वैसी LFT जब भी कैलकुलेट होगा तो मैक्सिमम वैल्यू टेल एंड्स की लेंगे। जितने टेल एंड्स मीट हो रहे हैं उसमें से जो सॉरी मिनिमम वैल्यूज LFT की लेंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई सबको? यस। सर यस सर यहाँ पे अपना प्रॉब्लम 50% सॉल्व हुआ है। 50% प्रॉब्लम इज रिमेनिंग बिकॉज आपने सिर्फ आपके फिर से स्टेटमेंट पढ़ो, सबसे ऊपर में क्या लिखा था, एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद क्या लिखा था, ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम एंड फाइंड द वैल्यूज EST EFT LST LFT टोटल फ्लोट। तो ये सारा काम करने के बाद सिर्फ आपके दो टाइम कैलकुलेशंस हुए, EST और LFT। अभी दो रिमेनिंग है। कौन से दो रिमेनिंग है बताओ, कौन से दो टाइम रिमेनिंग है? EFT और LFT। EFT LST यस, EFT एंड LST। अब EFT और LST कैसे निकालेंगे, वो फॉर्मूला भी था अपने पास। क्या था फॉर्मूला? EFT निकालने के लिए EST में एडिशन ऑफ ड्यूरेशन करेंगे। EFT निकालने के लिए ये ई वर्ड सेम है, देखो जो सेम सेम वर्ड है ना उससे याद रखो, ई और ई, अर्लीस्ट अर्लीस्ट, ठीक है ना। तो एक अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम मेरे पास है, दूसरा अर्लीस्ट फिनिश टाइम नहीं मालूम है मेरे को। तो फिनिश टाइम कैसे निकालूंगा, स्टार्ट में ड्यूरेशन ऐड करूंगा तो फिनिश हो जाएगा, स्टार्ट में ड्यूरेशन ऐड करूंगा तो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास एल में एक वैल्यू मालूम है LFT की, LFT फिनिश मालूम है बट स्टार्ट नहीं मालूम है, लेटेस्ट स्टार्ट नहीं मालूम है। तो फिनिश में से ड्यूरेशन माइनस करूंगा तो स्टार्ट मालूम हो जाएगा, ठीक है। एक में प्लस करेंगे, एक में माइनस करेंगे। अगेन वी विल देयर इज slide I want to share the Excel sheet in which we will try to find out the values, ठीक है ना। जो Excel sheet है मेरे पास इसमें values निकालेंगे आप। Wait a minute, I will share the value. Yes, Excel sheet. Yes, this is nothing but the Excel sheet. दिख रही है सबको एक्सेल शीट? यस, इट इज विजिबल, ठीक है, विजिबल है ना। अब ये इसमें टोटल अपने ये सारे वैल्यूज आपके कैलकुलेट करना है एक्सेल शीट में। मैंने क्या किया, जो आपने कैलकुलेशंस किए थे उसको कॉपी पेस्ट किया क्योंकि वो वैल्यूज मेरे को फिर से लिखना है। तो मैं फिर से लिखने के लिए मैंने वही चीज़ फिर से एक राइट साइड में कैलकुलेट किया, मतलब पेस्ट कर दिया। अब ये टेबल आपको ड्रॉ करना है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट ऑल द टाइम रिक्वायर्ड, earliest start time, earliest finish time, latest start time, latest finish time and the total flow, ठीक है। इसके मैंने नंबर्स दे दिया 1 2 3 4 अप टू 7 नंबर्स। कंफ्यूज नहीं होने के लिए येलो लाइन में वी हैव गिवन द नंबर्स।
अब ये ड्यूरेशंस, ये गिवन डाटा था, वही मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, 1 to 2 20, 1 to 3 25 एंड सो ऑन अप टू 10। ठीक है, अब कौन से वैल्यूज आपने निकाले थे, देखो ये फिगर्स में देखो कौन से थे अपने पास, दो वैल्यूज, EST एंड LFT। LFT अब EST के कॉलम, EST के वैल्यूज EST के कॉलम में लिखेंगे। कौन सा EST का कॉलम है, देखो यहाँ पे, दिस आर द EST values, ठीक है ना, इट इज टू बी टेकन केयर इन दिस कॉलम, इट इज टू बी फीड इन दिस कॉलम, EST के ये वैल्यूज। अब और एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो अभी बोल रहा हूँ मैं, EST लिखते वक्त में, EST लिखते वक्त में, ठीक है, ये एक्टिविटीज का नंबर्स दिख रहे हैं आप, 1 to 2, 1 से स्टार्ट हो रहा 2 तक जा रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा 3 तक जा रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा 3 तक जा रहा है। मगर EST लिखते वक्त आप फर्स्ट नंबर्स देखेंगे, क्या नंबर्स देखेंगे, 1 1 2 2 3 4, ये जो नंबर्स के, ये जो नोड्स के जो EST वैल्यू है, दैट EST वैल्यूज विल बी रिटर्न हियर। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जो 1 to 2 बोल रहे हैं, 1 नोड से 2 नोड तक गया, उसकी ड्यूरेशन 20 था, 1 से 3 तक गया, तो इसके जो फर्स्ट न्यू नंबर्स है, दैट नंबर्स की जो वैल्यूज है EST की, वो EST वैल्यूज विल बी रिटर्न हियर। इट क्लियर? यस। अब 1 से 2 तक देखो, 1 से 2 तक, तो अब मैं 1 की वैल्यू देखूंगा EST की, 1 की वैल्यू EST की कितनी है बताओ? 0 यस यस, 0, ठीक है। वैसे 1 से 3 तक जाना है आपको, 1 से 3 तक जाना है, बट मैं वैल्यू EST की लूंगा 1 की, फर्स्ट नंबर 1। तो अगेन 1 की EST कितनी है बताओ? 0 0 0। लिखते वक्त भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आपने ड्रॉ कर लिए, कैलकुलेट कर दिए, बट ये टेबल में लिखते वक्त में EST नेक्स्ट वाले का लिख दिया, 1 to 2 का था, तो मैंने 2 का EST लिख दिया यहाँ पे 20, तो मेरा आंसर रॉन्ग हो गया। ठीक है, अर्लियर स्टार्ट टाइम, स्टार्ट लिख रहे हैं आप, स्टार्ट लिख रहे हैं, स्टार्ट मतलब पहले वाला, पहला क्या है, 1 से 2 का पहला है 1, तो ये वी हैव टेकन एज 0, 1 2 3 1, मतलब उसकी वैल्यू 0। अब 2 to 3 देखो, 2 से 3 तक, तो स्टार्ट क्या रहेगा इसका, पहले वैल्यू वैल्यू करेंगे 2 की, तो 2 EST कितनी है बताओ? 20 20। वैसे 2 से 4 की वैल्यू में क्या रहेगा, 2 इज द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट अर्लियर स्टार्ट, 2 से 4 20, 3 to 4 3 to 4, 30 फिगर देखते जाओ, फिगर देखते जाओ, 30 इसलिए मैंने बाजू में पेस्ट किया फिगर, 30, 4 to 5 36 36। ये टेबल में लिखने का भी एक मतलब एक मेथड है और एक मतलब एक प्रोसीजर है, हाउ टू फीड दीज वैल्यूज इन द टेबल, ठीक है ना। So we have to take the starting numbers while feeding the EST value. ये सारा काम वर्डिंग्स पे हो रहा है, अर्लियर स्टार्ट टाइम, स्टार्टिंग टाइम, स्टार्टिंग वैल्यूज लेना आपको, ठीक है ना, 2 वाली वैल्यूज नहीं लेना है, 2 3 3 4 4 5 वाली नहीं, 1 1 2 2 3 4 वैल्यूज आपने ले ली। अब वही चीज आप रिवर्स वे में आप नेक्स्ट आपने निकाले थे यहाँ पे EST और LFT, अब ये कॉलम में मैं फीड करूंगा, ठीक है। अब LFT लिखते वक्त मैं क्या लिखूंगा बताओ आप, बताओ 1 से 2 में कौन सी वैल्यू लिखूंगा LFT की? 2 की यस, रिवर्स की। वे में चलेगा, 1 से 2 में अब बाद वाले नंबर्स की वैल्यू लिखूंगा, 1 से 2, तो we will take the value for second node, we will take the value of second node, 1 से 2, तो second node की LFT value is 20 20, 1 to 20 3, 20 1 to 3 में क्या लिखेंगे आप? 30 यस, 30 थर्ड नोड की वैल्यू लिखेंगे आप 30, 2 to 3 में थर्ड नोड की वैल्यू लिखेंगे, कितनी है? 36 थर्ड नोड 2 to 3 30, हाँ 2 to 4 में फोर्थ नोड की वैल्यू आप लिखेंगे, 36 और वो भी LFT लिखेंगे, मैं LFT के कॉलम में LFT की वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है ना, 36। नेक्स्ट 3 to 4 के वैल्यूज में कौन सी वैल्यू लिखेंगे आप? 3 to 4 4 की 4 की वैल्यू कितनी है? 36 यस 36। 4 to 5
46. 36 और 46, 46. 46. 36 और 46, 46. 46 किसने बोला था 36? ठीक है, एल एफ टी में बाद का नोड लेना है, बाद वाला नोड 4 to 5, तो फिफ्थ इज द नेक्स्ट नोड, तो वी विल टेक द वैल्यू एज 46। एक भी वैल्यू लिखते वक्त में आगे पीछे लिख दिया आपने तो आपका पूरा टेबल रॉन्ग, ठीक है ना, द वैल्यूज विल बी रॉन्ग। जो आपका पर्पस था टू फाइंड आउट द ड्यूरेशन, दैट ड्यूरेशन ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी रॉन्ग, ठीक है ना, पूरी वैल्यूज रॉन्ग हो गई। इसलिए मैं बहुत मतलब बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत वेरी प्रिसाइजली यू हैव टू राइट डाउन दिस वैल्यू, ठीक है ना। तो EST स्टार्टिंग नंबर्स पे डिपेंड करेंगे, LFT एंडिंग नंबर्स पे डिपेंड करेंगे, जहां पे एंड हो रहा है, क्योंकि फिनिश बोल रहा है ये LFT। ये आप याद रखने के लिए मतलब कैसा है कि इसके वर्डिंग्स itself indicates what is which values to be calculated, है ना। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम, फिनिश, तो फिनिश इज 2 3 3 4 4 5 is the finish, start is 1 1 2 2 3 4 is the start। क्लियर हो गई है? क्लियर हो गए दो कॉलम्स? यस। अब नेक्स्ट कॉलम मेरे को दो वैल्यूज निकालना है, EFT द अर्लीस्ट फिनिश टाइम। अर्लीस्ट फिनिश टाइम इज डिपेंडेंट ऑन अर्लियर स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम इज डिपेंडेंट ऑन अर्लियर स्टार्ट टाइम। कैसे डिपेंडेंट है? तो अर्लियर स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन विल बी द EFT। यहाँ पे लिख भी सकता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ the EFT to be calculated as EFT, calculate कैसा होगा? EFT that is equals to EST plus duration। okay, is it clear? Is it clear? Yes, sir. Yes. EFT कैसे निकालेंगे? EST में ड्यूरेशन ऐड होगा तो EFT के कॉलम वन बाय वन आप लिखेंगे, ठीक है। जैसा यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाइड वे में ग्रीन लाइन में लिख भी दिया हूँ, थर्ड कॉलम प्लस सेकंड कॉलम, 3 + 2, ये नंबर्स ऐड मत करो कॉलम से, तो 3 + 2 थर्ड कॉलम प्लस सेकंड कॉलम एडिशंस विल बी दिस। तो आप बताओ थर्ड प्लस सेकंड बताओ, फर्स्ट रो में क्या आएगा? 20. नेक्स्ट 25. 25. नेक्स्ट 30. 30. नेक्स्ट 32. 32. नेक्स्ट 36. 36. नेक्स्ट 46. 46. 46। यस करेक्ट। अब रिवर्स, एल वर्ड आ गया तो रिवर्स हो गई चीज, जो चीज अर्लिएस्ट की थी वैसी एल के लिए रिवर्स बन गई, फिनिश के लिए रिवर्स हो गई। अब जो LFT आपने निकाले थे वो LFT में से ड्यूरेशन माइनस होगा तो बनेगा LST। अगेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ LST that is equals to LST that is equals to LFT that is equals to LST that is equals to LFT minus durations, ठीक है, माइनस ड्यूरेशंस आ गया, माइनस ड्यूरेशंस, LST is equals to LFT माइनस ड्यूरेशंस। समझ में आया सबको? ठीक है। अब LFT में से ड्यूरेशंस निकाल दे जाओ, तो LFT कितना है देखो, यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाइड वे में भी बोला कि 6th कॉलम में से सेकंड कॉलम माइनस करना है, ये कॉलम नंबर्स है, इसको नंबर्स वैसा मत रीड करो, कॉलम से ही है। 6th कॉलम में से सेकंड कॉलम आप माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। आप तो बताते जाओ, 20 में से 20 गया तो कितना होगा? 0. 0। 30 में से 25 गया तो कितना होगा? 5. 5। 30 में से 10 गया तो कितना होगा? 20. 20. 20। 36 12, 36 में से 24. यस 24. 24. 24। 36 में से 6 गया तो कितना होगा? 30. 30. 36 में से 10 गया तो कितना होगा? 36. ठीक है, ये आपके वैल्यूज आ गए हैं LST के, ये दो फॉर्मूले से। अब टोटल फ्लोट, टोटल फ्लोट क्या डेफिनेशंस मैंने बताया था कि द फ्री टाइम रिक्वायर्ड और द फ्री टाइम विच हैज बीन देयर
विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट विच कैन बी यूज्ड फॉर सम अदर एक्टिविटीज। तो ऐसे फ्री टाइम मेरे पास कितना है, फ्री ड्यूरेशन कितना है, वो बताएगा टोटल फ्लोट। तो टोटल फ्लोट में क्या करना है आपको, जो LST आपने निकाले थे L, ठीक है ना, LST दैट इज फिफ्थ माइनस SS वाला, ठीक है ना, लेटेस्ट फिनिश टाइम, अर्लियर स्टार्ट टाइम, हाँ लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लियर स्टार्ट टाइम, ये दोनों कॉलम से आप माइनस करेंगे। 5 - 3 करो या फिर 6 - 4 करो, द वैल्यू विल बी सेम, ठीक है, द वैल्यू विल बी सेम। टोटल फ्लोट के लिए क्या करना है आपको, टोटल फ्लोट निकालने के लिए यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं आप, टोटल फ्लोट दैट इज इक्वल्स टू, वी कैन टेक एज LST माइनस LST माइनस EST और अदर वर्ड्स में LFT, दोनों भी आंसर सेम होगा, LFT माइनस EFT दैट इज द अर्लीस्ट फिनिश टाइम, दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, ठीक है। अब 1 बाय 1 बताओ, दिस फिफ्थ कॉलम में से 0 - 0 कितना होगा, 0 0 0 वैल्यूज। नेक्स्ट 5 5 5 दिस 5 - 3 मतलब ये फिफ्थ वैल्यू माइनस थर्ड वैल्यू कितना होगा, अगेन 5। 5 नेक्स्ट 0 0 0, नेक्स्ट 4 4 4, नेक्स्ट 0 0, नेक्स्ट 0 0 ठीक है। तो दैट मीन्स वी आर हैविंग दिस 5 + 4, ये ड्यूरेशंस के लिए, मतलब 1 से 3 जो लाइन जा रही है ये, और 2 to 4 जो लाइन जा रही है ये, इसके पास एक्स्ट्रा टाइम है दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर सम अदर वर्क। मतलब इसके पास 5 एक्स्ट्रा है, इसके पास 4 एक्स्ट्रा है, और ये 5 और 4 कोई अदर एक्टिविटीज को कैन बी यूज, ठीक है ना। तो दिस इज नथिंग बट द फ्री फ्लोट, टोटल फ्लोट, ये एक्चुअली इसका पूरा नाम टोटल फ्लोट है, बट दीज आर द फ्री फ्लोट वैल्यूज दैट कैन बी यूज फॉर सम अदर एक्टिविटीज, ठीक है। और ये 0 क्या इंडिकेट कर रहा है, व्हाट दिस 0 इंडिकेट्स, देयर इज नो एज सच फ्री टाइम रिक्वायर्ड, मतलब जो टाइम आपने बता रहे हैं वही टाइम में आपका काम हो जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम नहीं है उसके पास, ठीक है ना। तो दिस इज नथिंग बट 0 वैल्यूज, ठीक है ना, दिस 0 वैल्यू इंडिकेट्स। और एक चीज, जहां जहां पे 0 आ रही है, कौन सी वैल्यूज में 0 आ रही है, 1 to 3 में 0 आ रही है, इसको हाईलाइट कर देते हैं अपन, 1 to 3 में 0 आ रही है, 2 to 3 में 0 आ रहा है, इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट 3 to 4 में भी 0 आ रहा है, और 4 to 5 में भी 0 आ रहा है। दैट मीन्स ये जो है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 5, these values is nothing but the critical path। तो क्या बोलेंगे आप, critical path बोलेंगे। These values और this is nothing but the critical path, है ना, जहाँ पे total float और the free float values are 0, तो these lines or these activities are used or is nothing but the critical path। तो critical path मेरे पास कौन सा है, 1 से 2 वाला, नेक्स्ट 2 से 3 वाला, नेक्स्ट 3 से 4 and 4 to 5। The next statement is again very important, that is the critical path। critical path, बताओ कौन सा critical path है, critical path के नंबर्स कौन से हैं, 1 से 2 तक, 1 2 3 4 2 5 से 3 तक, 3 से 4 तक, और 4 से 5 तक is nothing but the critical path। What about the durations? अब ड्यूरेशंस भी निकालो, 1 से 2 का ड्यूरेशंस कितना है, 20, ठीक है 20 है। 2 से 3 का ड्यूरेशंस कितना है, 10। 3 से 4 का ड्यूरेशंस कितना है, यस 6। 6 4 to 5 का ड्यूरेशंस कितना है, 10 तो टोटल ड्यूरेशंस रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन एज पर क्रिटिकल पाथ कितना होगा, एडिशन करो पूरा, 46 आया अपने पास 46 आंसर, पूरा आया था यहाँ पे 46 आंसर्स, यस। तो दिस इज द वैल्यू फॉर द क्रिटिकल पाथ, ठीक है ना। तो क्रिटिकल पाथ सबसे पहले आपको बताना है, आइडेंटिफाई करना है उसका रूट, कि कैसा रूट रहेगा, 1 2 3 4 5 इज द रूट फॉर क्रिटिकल पाथ, प्लस उसके बाद उसके वैल्यूज ऐड करते जाओ, 20 10
6 और 10, ये सब ऐड करो, उसके बाद टोटल ड्यूरेशंस इज द ड्यूरेशन फॉर क्रिटिकल पाथ, ठीक है ना। 46 इज द ड्यूरेशन फॉर क्रिटिकल पाथ, ठीक है। ये आज के लेक्चर्स में we have gone through the various time required, and we have drawn a critical path, and we have also find out the duration for the critical path, ठीक है। ये चीज सबको क्लियर हो गई? यस यस सर। sir. Yes, sir. यस, ठीक है, सबके लिए क्लियर हो गया?